رات کی گہری خاموشی میں قصور کے ایک کونے میں ہجوم جمع ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ کیا تم نے سنا؟ بلّہ کافر ہو گیا ہے۔ فضا میں خوف، غصہ اور حیرت گھل چکے ہیں۔ کچھ لوگ پتھر اٹھا رہے ہیں، کچھ کے چہروں پر نفرت اور کچھ کے دلوں میں سوالات۔ اسی شور میں ایک سفید لباس پہنے بزرگ خاموشی سے کھڑے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں سکون ہے، جیسے دنیا کے طوفان ان کے اندر کے سکون کو چھو بھی نہیں سکتے۔ کوئی چیخ کر کہتا ہے، یہی ہے بلّہ شاہ جو اب مسلمان نہیں رہا۔ مگر بلّہ شاہ خاموش ہیں۔ ان کے ہونٹوں پر صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہے، جیسے وہ جانتے ہوں کہ سچائی صرف شور سے نہیں، سکون سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے انہیں کافر کہا، مگر ان کے دل میں عشق حقیقی کا نور جاگ اٹھا۔ زمانہ تقریباً 17ویں صدی کا ہے۔ پنجاب کی سرزمین پر علم و مذہب کے مراکز آباد ہیں۔ ایک نوجوان عالم سفید لباس میں ملبوس، ہاتھ میں قرآن لیے، قصور کے قریب ایک بستی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ہے بلّہ شاہ، ایک علم دوست، سنجیدہ اور خاموش مزاج نوجوان، جو دنیا سے نہیں اپنے دل کے سوالات سے لڑ رہا ہے۔ اس زمانے میں بلّہ شاہ کو ہر کوئی ایک عالم، قاری اور فقیہ کے طور پر جانتا تھا، مگر وہ خود اپنے اندر ایک خالی پن محسوس کرتا تھا۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے، بلّہ شاہ مسجد کے صحن میں بیٹھے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی زبان پر صرف ایک جملہ تھا، اے اللہ، میں تجھے کیوں نہیں پا سکتا؟ اسی لمحے ان کے دل میں ایک صدا گونجی، اگر تو چاہتا ہے کہ مجھ تک پہنچے تو علم نہیں، عشق کا راستہ اختیار کر۔ اگلی صبح بلّہ شاہ اپنے علم کے غرور کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی تلاش پر نکل پڑے، عشق کی تلاش۔ وہ قصور سے نکلے، دل میں بے چینی اور زبان پر خاموشی۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کا مقدر انہیں کس کے قدموں تک لے جائے گا۔ راستے میں انہیں ایک بوڑھا فقیر ملا جو کھیتوں میں گندم لگا رہا تھا۔ یہ فقیر کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ تھے حضرت شاہ عنایت قادری، جن کی ایک نگاہ نے بلّہ شاہ کی تقدیر بدل دی۔ بلّہ شاہ نے ان کے قدموں میں گر کر کہا، مرشد، مجھے عشق سکھا دو تاکہ میں خدا تک پہنچ جاؤں۔ شاہ عنایت مسکرائے اور فرمایا، بلّہ، تو کتابوں سے نکل اور دل کے اوراق پڑھ، وہاں تجھے خدا ملے گا۔ یہی لمحہ بلّہ شاہ کے سفر عشق کی ابتدا تھی، ایک ایسا سفر جو انہیں عالم سے عاشق بنائے گا، اور یہی سفر ایک دن انہیں اس مقام تک لے جائے گا جہاں دنیا کہے گی بلّہ کافر ہو گیا ہے، مگر حقیقت میں وہ عاشق حقیقی بن چکے ہوں گے۔ دن چڑھ چکا تھا۔ شاہ عنایت کے کھیتوں میں مزدور گندم بو رہے تھے۔ بلّہ شاہ بھی ان کے ساتھ خاموشی سے کام کر رہا تھا۔ وہ جو کبھی قصور کا عالم فاضل تھا، اب مٹی میں ہاتھ ڈال کر بیج بو رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر سکون تھا۔ شاہ عنایت نے دور سے دیکھا اور فرمایا، یہی عشق کی پہلی منزل ہے، اپنے آپ کو مٹی میں ملا دینا۔ بلّہ شاہ نے جھک کر مٹی کو چھوا اور کہا، اے مٹی، تو ہی اصل ہے، میں تجھ میں ہی فنا ہوں۔ وقت گزرتا گیا۔ بلّہ شاہ کھیتوں میں کام کرتے، لوگوں کے جوتے سیدھے کرتے، جانوروں کو پانی پلاتے۔ قصور کے لوگ حیران تھے، یہی تو وہ بلّہ شاہ ہے جو کبھی علم سکھاتا تھا، اب مزدور بن گیا۔ مگر بلّہ شاہ اب بدل چکا تھا۔ اس نے عزت اور ذلت کے درمیان کی لکیر مٹا دی تھی۔ ایک دن شاہ عنایت نے کہا، اے بلّہ، اگر تو عشق میں سچا ہے تو اپنے علم کو قربان کر دے۔ بلّہ شاہ خاموش رہا۔ اگلی صبح اس نے اپنی تمام کتابیں، قلم اور دستار ایک چادر میں لپیٹی اور ندی کے کنارے جا پہنچا۔ اس نے وہ چادر پانی میں بہا دی، جیسے اپنے ماضی کو خدا کے حوالے کر دیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر ہونٹوں پر ایک دعا تھی، اے رب، مجھے وہ علم عطا کر جو کتابوں میں نہیں ملتا۔ جب وہ واپس آیا، شاہ عنایت نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور فرمایا، اب تو طالب عشق بن گیا ہے۔ اس دن سے بلّہ شاہ کے اندر ایک نئی روشنی جاگ اٹھی، وہ روشنی جو عقل سے نہیں، عشق سے پیدا ہوتی ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ روشنی ایک دن دنیا کی تاریکیوں کو للکارنے والی تھی۔
बुल्ला शाह अब शाह इनायत के मुरीद बन चुके थे। वो हर रोज़ खेतों में काम करते, जिक्र में मशगूल रहते और अपने मुर्शिद की खिदमत करते। मगर इंसान होने के नाते उसके अंदर अब भी एक हल्की सी मैं बाकी थी, एक छोटी सी दीवार जो इश्क के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी। एक दिन शाह इनायत ने अपने मुरीदों से फरमाया, आज सब मेरे खेतों में जाकर झाड़ियाँ साफ करें। सब मुरीद फौरन निकल गए, मगर बुल्ला शाह दिल में सोचने लगा, मैं एक आलिम हूँ, मैं झाड़ियाँ क्यों साफ करूँ, ये काम तो मजदूरों का है। उसके दिल की ये छोटी सी सोच उसके इश्क के इम्तिहान का आगाज बन गई। शाह इनायत ने खामोशी से उसके दिल का हाल जान लिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक सर्द नज़र डाली जो सब कुछ कह गई। उस दिन से मुर्शिद ने बुल्ला शाह से बात करना छोड़ दी। जिक्र की महफिल हो या खेतों का काम, उनकी निगाह अब बुल्ला की तरफ नहीं जाती थी। बुल्ला शाह ने कई दिन सब्र किया, मगर जब मुर्शिद ने खामोशी बरकरार रखी तो उसके दिल में तूफान उठा। एक दिन उसने जाकर मुर्शिद के कदमों में गिर कर कहा, हुजूर, अगर मैंने दिल में कोई तकब्बुर रखा है तो मुझे माफ़ कर दें। शाह इनायत ने फरमाया, बुल्ला, इश्क में मैं बाकी नहीं रहती। जिसने खुद को मिटा दिया वही खुदा को पा लेता है। बुल्ला शाह ने सर झुका लिया। उसके आंसू मिट्टी पर गिर रहे थे और मिट्टी उन आंसुओं में नूर बनकर चमकने लगी। उस दिन बुल्ला शाह के दिल की मैं टूट गई। उसने समझ लिया कि इल्म से बड़ा इश्क है और इश्क से बड़ा फना। अब वो वही नहीं रहा था। वो मिट्टी में मिला हुआ मगर हकीकत में रब के करीब हो चुका था। वक्त गुजरता गया। बुल्ला शाह की इबादत, खिदमत और इश्क में गहराई बढ़ती गई। मगर किस्मत में एक और आजमाइश लिखी थी। एक दिन किसी मुरीद ने हसद में आकर शाह इनायत के कान में बात कही, हजरत, बुल्ला अब खुद को आपसे बड़ा समझता है। शाह इनायत ने कुछ नहीं कहा, मगर उनकी खामोशी में तूफान छुपा था। अगले दिन बुल्ला शाह हस्बे मामूल हाजिर हुए, मगर आज मुर्शिद की आंखों में वो प्यार नहीं था जो पहले था। बुल्ला शाह ने सलाम किया, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। दिन गुजरते गए और एक दिन मुर्शिद ने फरमाया, बुल्ला, अब तू जा, हमारा रास्ता अलग है। ये जुमला बुल्ला शाह के लिए गोया मौत था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, दिल लरस गया और ज़बान पर बस इतना निकला, हुजूर, मैं कहाँ जाऊँ आपके बगैर। मगर मुर्शिद ने नज़र नहीं उठाई। बुल्ला शाह ने आहिस्ता से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम उनके दिल पर जख्म छोड़ता जा रहा था। जब वो दहलीज पर पहुंचे तो पलटकर एक आखिरी नज़र डाली, मगर मुर्शिद अब भी खामोश बैठे थे। बाहर आकर वो ज़मीन पर गिर पड़े। आसमान की तरफ देखकर बोले, ए रब, अगर तू चाहे तो मुर्शिद राजी हो जाए। मैं कुछ नहीं, बस तू ही तू है। वो कई दिन जंगलों में भटकते रहे, ना खाना ना पानी, बस दिल में एक सदा, मुर्शिद नाराज क्यों हैं? कभी वो दरख्त के नीचे बैठकर रोते, कभी मिट्टी पर सजदा कर, अगर मुर्शिद नाराज हैं तो शायद अभी मेरा इश्क अधूरा है। उस रात उन्होंने फैसला किया कि जब तक मुर्शिद माफ़ ना करते वो अपनी अना, अपनी इज्जत सब कुर्बान कर देंगे। ये जुदाई उन्हें तोड़ चुकी थी, मगर हकीकत में यही जुदाई उन्हें वसाल के करीब ले जा रही थी। कसूर की फ़ज़ाओं में एक नई सरगोशी गूंजने लगी। लोग चौराहों, मस्जिदों और बाज़ारों में एक ही बात दोहरा रहे थे, बुल्ला शाह काफिर हो गया है। किसी ने कहा वो नाचने वालों के दरमियान बैठता है। किसी ने कहा वो अपने मुर्शिद के इश्क में पागल हो गया है। मगर बुल्ला शाह खामोश थे। उनकी आंखों में वो रोशनी थी जो किसी दुनियावी फतवा से नहीं बुझ सकती। एक दिन कुछ आलिम और जाहिद उनके पास आए। उन्होंने कहा, बुल्ला, तुमने इल्म छोड़ दिया, रक्स को अपना लिया, तुम गुमराह हो गए हो। बुल्ला शाह ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, मैंने किताबें छोड़कर दिल पढ़ना शुरू किया है और वहां सिर्फ एक ही लफ्ज़ लिखा है, इश्क। उलमा ने गुस्से से कहा, ये अल्फाज कुफ्र हैं, और मजमा में शोर मच गया। लेकिन बुल्ला शाह ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो शोर नहीं, सिर्फ अपने रब की खामोश पुकार सुन रहे हों।
उस रात बुल्ला शाह तन्हा अपने कच्चे सहन में बैठे थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे और दूर से तबले की हल्की आवाज आ रही थी। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, अगर इश्क कुफ्र है तो मैं काफिर हूं, मगर मेरा कुफ्र ईमान से ज्यादा पाक है। उस लम्हे जैसे आसमान से नूर बरसा, एक बिजली चमकी और उनके चेहरे पर अजब सुकून छा गया। कसूर के लोग समझ नहीं पाए कि जिसे वो काफिर कह रहे हैं वो तो इश्क़ इलाही की ज़बान में बोल रहा है। उनके लबों पर एक ही मिसरा था, बुल्लाहा की जाना में कौन, और दुनिया खामोश हो गई। वक्त गुजरता गया, बुल्ला शाह के दिल में एक ही खलश बाकी रह गई थी। मैंने अपने मुर्शिद को नाराज कर दिया है। दिन हो या रात, उनके दिल में शाह इनायत की तस्वीर रहती। वो अक्सर चुपचाप उनका नाम लेते और रोने लगते। आखिर एक दिन उन्होंने फैसला किया, अब वापस जाना है, हाँ मरना ही क्यों ना पड़े, मैं अपने मुर्शिद के कदमों में सजदा दूंगा। कसूर से शाह इनायत का गांव कई मील दूर था, मगर बुल्ला शाह पैदल निकल पड़े। रास्ते में कांटे थे, धूप थी, मगर उनके दिल में सिर्फ इश्क का साया था। सफर के दौरान वो गुनगुनाते रहे, मैं जाना तेरे नाल लगिया, ना दो जी नाल बहल दिया। जब वो मुर्शिद के दरवाजे पर पहुंचे तो दरबान ने कहा, बाबा जी नाराज हैं, आपका दाखला मना है। बुल्ला शाह के कदम रुक गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो पलटे नहीं। वो वहीं बैठ गए, दरे मुर्शिद के बाहर खाक में। कई दिन वहीं बैठे रहे, ना खाया ना सोया, बस इश्क में डूबा रहा। एक दिन शाह इनायत के मुरीदों ने देखा कि एक दरवेश मिट्टी में रक्स कर रहा है, गीत गाते हुए, तेरे इश्क नचाया पर के थया थया। ये मंजर शाह इनायत ने खुद देखा। उनके चेहरे पर नरमी आई और आंखों में आंसू। वो आगे बढ़े और बुल्ला शाह को गले लगा लिया। कहा, बुल्ला तू वही पा गया जिसकी तलाश में था, तू खुद इश्क बन गया है। बुल्ला शाह सजदे में गिर गए और कहा, मुर्शद अब मैंने खुद को नहीं तुझे पा लिया है और तेरे जरिए उसको। उस लम्हे फिजा में नूर फैल गया, हवा में जिक्र की खुशबू थी। आसमान जैसे झुककर कह रहा हो, यही है इश्क की मिराज। उस दिन के बाद बुल्ला शाह की शायरी सिर्फ लफ्ज नहीं रही, वो जिक्र बन गई, जो आज भी हर आशिक के दिल में गूंजती है। मुर्शिद के कदमों में सजदा करने के बाद बुल्ला शाह की जिंदगी बदल गई। उनके दिल में अब कोई ख्वाहिश नहीं बची थी, बस सुकून था जो इश्क के जरिए मिला था। अब वो कम बोलते, ज्यादा सुनते, कम लिखते, ज्यादा महसूस करते। हर लफ्ज उनके दिल से निकलकर लोगों के दिलों तक पहुंचता। गांव के लोग जो कभी उन पर फतवे लगाते थे, अब उनके कदम चूमने लगे। उनकी महफिलों में जिक्र, अशार और आंसुओं की खुशबू होने लगी। उनके अशार में अब शिकवा नहीं, शुक्र था। वो कहते, मैं ना रहिया, सब तू रहिया, बुल्ला हुआ फना। वक्त गुजरता गया, जिस्म कमज़ोर होता गया, मगर दिल पहले से ज़्यादा रोशन। एक रात जब हवा में खामोशी छा गई, उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, अब बुला ले, तेरा इश्क पूरा हो गया है। वो लम्हा आया, एक हल्की मुस्कुराहट के साथ उनकी सांस थम गई, मगर उनकी खुशबू फ़ज़ा में रह गई। अगली सुबह कसूर की फ़ज़ा में अजीब सुकून था, जैसे ज़मीन ने एक वली को अपने अंदर समो लिया हो। लोग रोते हुए उनका जनाजा उठा रहे थे, मगर फ़ज़ा में उनके अशार गूंज रहे थे, बुल्लाहा की जाना में कौन। कहा जाता है उस दिन बारिश हुई, मगर वो बारिश आंसुओं की नहीं, रहमत की थी। उनकी कब्र आज भी कसूर में है, जहां आने वाला हर ज़ायर वही नूर महसूस करता है जो उनके दिल में था। उनका पैगाम आज भी जिंदा है, इल्म नहीं, इश्क असल इबादत है, और ये विसाल नहीं, एक नई इब्तिदा थी, जहां बुल्ला शाह खाक से नूर बन गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको बुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह की ये रूहानी दास्तान दिल की गहराइयों तक महसूस हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराहे करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक मज़ीद ऐसी ईमान अफरोज़ और रूहानी कहानियाँ ला सकें। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपके दिल में भी इश्क़ हकीकी की रोशनी भर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।